Hello everyone. Now this is the next class in your bryophytes, the class Moses or Bryopsida. आपको ब्रायोफाइट्स क्या है बताया मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में. Bryophytes are the moist living plants. They grow on moist surfaces, moist soil and rocks. Okay, they need water for their fertilization. In that we have seen the life cycle of Mertensia, that is a liverwort. Liverwort belongs to the class Hepaticopsida because they appear like liver, lobes of liver. Hepaticopsida family Hepataceae, right? वैसे सेकंड है Moses, जिसमें आते हैं आपके Bryopsida. ये सेकंड क्लास है. ओके, अब इसमें और मोजेस में क्या फर्क है, मोजेस में और लीवरवर्ट्स में क्या फर्क है, अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स देखते चलोगे, अगेन इसमें भी गैमेटोफाइट फेज रहेगा, इसमें भी स्पोरोफाइटिक फेज रहेगा और फिर स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफाइट बनेगा, वही बातें आएंगी. बस इनमें जो लाइफ साइकिल का फर्क है और इनकी जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स है वो थोड़े से अलग है. ओके, इनमें थोड़े से आपको अलगी जैसे भी चीजें दिखाई देंगी, थोड़ी सी प्रिमिटिव प्लांट्स भी दिखाई देंगे और थोड़े से वो मॉडिफाई होकर एडवांस प्लांट बनने की कोशिश भी करेंगे. Till now we have seen that algae, they were completely aquatic. Okay, they were either aquatic or they were having leaf-like structures, scalps वगैरह. Then your liverworts, they were having dorsiventrally flat structure and the male and female sex organs were produced and that on its gametophyte. That gametophytes will produce gametes. Gametes will fuse to form zygote in the female receptacle, and that zygote will develop into embryo, and embryo will develop into sporophyte, which will be dependent on your gametophyte. Sporophyte some cells will undergo meiosis to produce spores, and that spores are released and they on germination will again develop into a new gametophyte. This was the simple life cycle of your Mertensia or liverworts. Now let's come to the next one, the mosses. So mosses, they represent इनके examples पहले learn कर लो, 3 examples. Funaria polytrichum and sphagnum. इनके uses at the end हम देख लेंगे. So these are the 3 examples that you have to remember here. Mertensia and Riccia. RICCIA. They are the examples of your liverworts. वहाँ पे ऐड कर लो ये 2 examples, Mertensia and Riccia. So Riccia belongs to your liverworts because its surface is having a dorsiventral liver's lobe-like structure, just like Mertensia. But here the 3 examples are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Polytrichum confuse करता है. Polytrichum नाम पढ़ने के बाद कई बार अपन Polysyphonia या फिर Porphyra जो आपके रेड अलगी थे उनके साथ आपको मिक्स कर देते. बट पॉलीट्राइकम ये नाम आपको यहाँ पर ही याद रखना है, दिमाग लगाओ. फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, these are the examples of mosses. They belong to the class Mosses or Bryopsida. ओके, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको स्पैग्नम और फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है. फ्यूनेरिया में आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो थोड़ा सा काड़ी जैसा 1-2 सेंटीमीटर इतना छोटा सा एक ग्रीन कलर का प्लांट बताया है. स्पैग्नम में बहुत सारी ग्रीन पत्तियां जैसी बताया वाली आपको. तो इसमें भी 2 चीजें रहेंगी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट. सो गैमेटोफाइट इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर which will produce sex organs, okay, and sporophyte is the spore producing structure. Gametophyte is always haploid, its cells are always haploid. Okay, it is green and independent on the sporophyte, it will grow normally at its own. Okay, अब यहाँ जो mosses का gametophyte है, it is different from the gametophyte of your liverworts because liverworts में क्या हुआ था, जो Mertensia था, जरा लाइफ साइकिल याद करो, उस पे आता मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंथेरिडियम और फीमेल आर्चिगोनियम. फिर मेल गैमेट तैयार होते हैं, फीमेल गैमेट तैयार होते हैं, उनकी फ्यूजन से जाइगोट तैयार होता, जाइगोट की फिर ग्रोथ होके एम्ब्रियो बनता और उससे स्पोरोफाइट तैयार होता और स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जब रिलीज होंगे तो स्पोर्स विल अगेन ग्रो इनटू गैमेटोफाइट. राइट, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, आपका जो गैमेटोफाइट था ये ऐसा दिखाई देता था. करेक्ट है, डायरेक्ट फ्लैट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता. लेकिन यहाँ पे मोजेस में गैमेटोफाइट में 2 फेजेस दिखाई देते. देयर आर 2 डिस्टिंक्ट फेजेस इन गैमेटोफाइट. हाउ द स्पोर, यहाँ पे क्या होगा, स्पोर से शुरुआत करने का. सो स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. स्पोर्स आर आल्सो हैप्लॉइड बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मेयोसिस. वैसी बात रहेंगी वो पिछले की, वो आगे अपन कंटिन्यू में देखेंगे कैसे. सो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते. सो दैट स्पोर्स विल germinate on getting suitable condition and they will develop into
algae like filamentous green creeping structure, उसमें जैसे ट्यूब लाइक धागे निकलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होंगे उसमें से निकल। आपको वीडियो लिंक डालने वाला हूं मैं आज एंड में, मोजेस की लाइफ साइकिल आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। उसमें बहुत डिटेल में दिया होगा, लेकिन आपको उतनी डिटेल में मीनिंग्स नहीं देखने के, बस मैं जो बोल रहा हूं आपको दिख रहा है क्या देखना है। व्हाट द स्पोर ऑफ मॉस विल germinate to form first stage, it is known as protonema stage। प्रोटोनीमा, प्रोटो मतलब सिंपल और नीमा मतलब थ्रेड, प्रोटोनीमा सिंपल थ्रेड लाइक स्टेज। इट इज ग्रीन creeping filamentous and branched filamentous, green creeping filamentous and branched। It will be photosynthetic and it will synthesize its own food and it will be having algae like structure, जैसे कि algae फैला लेते हैं ना, filamentous algae जैसे फैला लेते हैं, just like that it will appear। This will be the primitive stage of your gametophyte। It will not produce male and female sex organs। This is the spreading stage, it will just spread on the moist soil, it is called protonema stage। okay, पहली स्टेज समझे। This is the first phase of your gametophyte। Then it will produce a bird here, this protonema stage, it will produce a bird here। okay, that bird will grow, मैं bird को डार्क कर रहा हूं यहाँ पे, they are called lateral birds। they will become your secondary protonema, they will act as secondary protonema। okay, secondary protonema। प्राइमरी प्रोटोनीमा एकदम थीन थे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा मतलब वो स्वेल होने लगेंगे। एंड एट दैट बर्ड यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ, इस तरीके से वो नीचे के जो फिलामेंट्स थे वो ऐसे थे, ये वाले फिलामेंट्स ओके प्रोटोनीमा के, और जहां पे बर्ड था वहां पे से आपको इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स एंड अ स्टेम एंड सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे rhizoids, stem like structure and leaves are specially spirally arranged leaves, 6 to 8 spirally arranged leaves। leaf like structure ही रहेंगे, एक्चुअली छोटे छोटे leaves ही रहेंगे। leaves were not present, true roots were absent, rhizoids यहाँ पे रहेंगे, root like structures रहेंगे, roots। okay, and stem is also present, एक छोटा सा stem। so this will be a new small plantlet like structure that develops at secondary protonema। ये जो बर्ड है, बर्ड पे से सिंपली इमेजिन करो, रूट्स आ जाएंगे नीचे, ऊपर एक स्टेम जाएगा और नीचे पत्तियों का झुंड आएगा और पत्तियां स्पाइरली आ रही है, 1 2 3, फिर उसके ऊपर 1 2 3, फिर और 3, ऐसे 3 पत्तियों का अरेंजमेंट रहेगा। ओके, अलग अलग फाइलोटैक्सी रहती है अरेंजमेंट, स्पाइरल अरेंजमेंट की 3+8 3/8 फाइलोटैक्सी। ओके, 3/8 मतलब क्या रहेंगे, 3 पत्तियां रहेंगी, 1 2 3, ऐसे 8 बार रहेंगी, 1 2 3 1 2 3, फिर और 3/8। ओके, ऐसी फाइलोटैक्सी रहेंगे यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इट इज नोन एज फाइलोटैक्सी। सो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स आर प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ योर bird, lateral bird। roots will be present or rhizoids will be present, roots, thin multicellular roots will be present। okay, and a stem like structure is also present at the apex of this यहाँ पे ऐसी। okay, at its apex the sex organs are produced, archegonia and antheridium। वही अपने मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या रहते हैं, एंथेरिडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट व्हिच विल बी बायफ्लैजेलेट, फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड बायफ्लैजेलेट, एंथेरोजॉइड वही नाम। ओके, एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, इट इज विदाउट फ्लैजेला, बायफ्लैजेलेट male gametes। female gamete it is non motile। ओके, वही बाकी चीजें अब देखो सेम है, बस एडिशनल चीज क्या थी आपको समझ में आया क्या, स्पोर विल डायरेक्टली ग्रो इनटू, it will not directly produce gametophyte, it will produce
two stages, protonema stage and secondary protonema or gametophyte. So this is the first stage which is protonema is green, creeping मतलब वो जमीन पर रेंगने वाला है, and it is filamentous and branched stage. It is green and hence it will be photosynthetic. It is independent. Then it will produce lateral buds which will act as secondary protonema, and then they will grow into a gametophyte having root, leaves arranged in spiral phyllotaxy, spirally arranged leaves, 3/8 phyllotaxy. Okay, and then stem, a small stem will be here, and the sex organs at the end. Sorry, these are the sex organs. Okay, again there will be dioecious condition or monoecious condition, means both the sex organs are produced on different plant body, that is dioecious condition, or they may be produced on same plant body, that is monoecious condition, but mainly they are also dioecious. Male sex organs are produced on distinct plant and female sex organs are produced on distinct plant. Then male and female organs are antheridium and archegonium. They will produce male gametes by mitosis, क्योंकि ये खुद haploid structure है. This is also haploid, this is also haploid, protonema is also haploid. So haploid structures will grow by mitosis. They will all grow by mitosis. Now when gametes are formed, that is male gamete is biflagellate, female is non-motile, they will fuse to form diploid zygote. Zygote will develop into embryo, which is also diploid by mitosis, and embryo will develop into sporophyte, which is also diploid, and that sporophyte will produce meiosis, undergo meiosis, and it will produce your haploid spores, and from spores again gametophytic condition will grow like this. बस बीच में protonema, secondary protonema, and then your leafy stage. This is called leafy stage because it is having leaf. First is protonema stage. फर्क ध्यान में आ रहा है कि बेटा दो फर्क क्या है? मोजेस की लाइफ साइकिल कैसी है? देखो लीवर वर्ड्स में भी गैमेटोफाइट आता है और स्पोरोफाइट आता है, बराबर है. उनका गैमेटोफाइट डायरेक्ट ऐसा फ्लैट रहता है और उस पे डायरेक्ट एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा? डायरेक्ट आपको एंथेरिडिया आर्चिगोनिया वाला पार्ट नहीं मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग वन स्टेज कॉल्ड प्रोटोनिमा स्टेज विच इज क्रीपिंग स्टेज, एंड सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज. सो अगर आपको एमसीक्यू मिला इनमें से कौन से प्लांट में दो स्टेजेस मिलती गैमेटोफाइट में, एक क्रीपिंग स्टेज रहती और एक स्ट्रेट स्लेंडर एक्सिस रहता लीफी स्टेज रहती. सो दे आर योर मोजेस. दे शो टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन योर गैमेटोफाइट. फर्स्ट इज प्रोटोनिमा क्रीपिंग स्टेज which is green and filamentous, that grows into a leafy stage having leaves and a slender thin axis known as stem along with roots. In this leafy stage, on this leafy part, you can see the presence of sex organs, male and female sex organs, that produce male and female gametes which fuse to form diploid zygote. Zygote will grow by mitosis on female structure, क्योंकि अब यहाँ पे भी अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के जैसे ही. Male gametes, since they are motile, they will move along with water because they need water for their fertilization. They are amphibians of plant kingdom, right? So water is essential here. Water will carry these biflagellate male gametes and they will reach the female archegonia. Okay, archegonia, when they enter the archegonia, so they will fertilize the egg and egg will grow into diploid zygote. Zygote will develop into embryo, and what happens when the embryo is formed? So the archegonia के अंदर zygote बना ना, और embryo भी वहीं पे बना. So archegonia will cover the embryo. It will cover the embryo by division of cells और उसको कवर कर लेंगे. It is called calyptra. मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता, आपको लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लिए होंगे तो यहाँ से देखते हैं. ओके, ये ऐसी पत्तियां थी. ओके, यहाँ पे ऐसी, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट. इसके अंदर मेल गैमेट आ गया यहाँ पे, ये फीमेल गैमेट. ओके, वो उसको फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, ये जाइगोट वाली स्टेज. अब जाइगोट जब ग्रो होने लगेगा, सो व्हेन जाइगोट विल ग्रो, इट विल फॉर्म mass of cells known as embryo. It will grow into mass of cells known as embryo, and at that time ये जो मेल गैमेट यहाँ से घुसा था, so your archegonia will cover this embryo and this jacket is known as calyptra. This jacket is known as calyptra.
the covering produced by archegonia means it will be also haploid because archegonia is the part of gametophyte, so वो haploid रहेगा. But embryo which is growing inside here, so that embryo will be diploid because it is produced from zygote. Okay, then this embryo will again grow, and again at the same time this stem will also elongate. This stem is also elongate. The embryo will elongate, it will grow here, और फिर क्या होगा, लीफी स्टेज नीचे रह जाएंगी, ये रूट्स है, ये लीव्स है. ओके, और फिर ये यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन का ऐसा छोटा सा एक स्टेम था, इकाड़ी थी. अब एम्ब्रियो क्या करता, नाउ एम्ब्रियो विल ग्रो, ये एम्ब्रियो, ये ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा जो वो एम्ब्रियो है. ओके, एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, so cells of embryo will grow, they will produce a foot, ये foot, this is the seta, and it will produce a capsule here, मतलब ये जो ब्लू पार्ट मैंने ड्रॉ किया, इट इज कॉल्ड फुट, दिस इज सेटा, and the upper part is called capsule. So these are the three parts of your sporophyte. Sporophyte is having a distinct structure here. It can be viewed with eyes. As in case of Mertensia, it is not visible here. It is visible here. Mertensia उसमें वो visible नहीं था. Mertensia में क्या हुआ था, आपका जो sporophyte था, ये मर्केंशिया का फीमेल थैलस था, यहां पे आर्चिगोनियोफोर था, राइट. इसके अंदर ही यहाँ पे आपके स्पोरोफाइट तैयार हुआ था, इसके अंदर आपका स्पोरोफाइट तैयार हुआ था, लेकिन वो अलग से दिखाई नहीं देता. इट इज नॉट हैविंग अ डिस्टिंक्ट वेल ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स फुट, सेटा एंड कैप्सूल, दैट स्टेजेस वेर वेरी हाईली रिड्यूस्ड. मर्केंशिया में, लीवरवर्ट्स में ये ज्यादा स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, इट इज हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर. इट इज समवॉट इंडिपेंडेंट, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती गैमेटोफाइट की, बिकॉज इट इज ग्रीन, एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स इनसाइड इट बाय इट्स ओन. जबकि आपका जो मर्केंशिया वाला जो स्पोरोफाइट था, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. लीवरवर्ट्स में भी स्पोरोफाइट तैयार हुआ, अपने मॉजेस में भी स्पोरोफाइट तैयार हो रहा है. वहां पे भी स्पोरोफाइट को फुट, सेटा, कैप्सूल हो सकती, नहीं हो सकती, जनरली रहती, लेकिन जो लोअर लीवरवर्ट्स है उनमें नहीं रहती. कैप्सूल सब में रहती, क्योंकि कैप्सूल में ही स्पोर्स बनेंगे. यहाँ पे भी कैप्सूल है, लेकिन कैप्सूल के साथ यहाँ पे एक छोटा सा एक्सिस है, इट इज कॉल्ड सेटा, and a small part is here, it is called foot, seta and capsule. These are the parts of your sporophyte here. They are also present in liverworts, but they are highly reduced, and therefore the sporophyte of liverworts is totally dependent on gametophyte. It is totally dependent for nutrition on gametophyte. Here the sporophyte is partially dependent. अब partially dependent क्यों? It will take nutrition from here up to some period, then it is green in color, and hence it will synthesize its own food. It will form spores, and it will then dry up, and bursting of its mouth will occur. Opening जो रहेगा उसका ओपर्क्यूलम जो रहेगा, वहां पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, वो ऐसे खुल जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाने से फिर it will burst and they will release the spores आउटसाइड दी कैप्सूल. समझ में आ रहा है? बर्स्टिंग की प्रोसेस अपने को नहीं देखने की, बस सिंपली स्पोर्स ऐसे रिलीज हो जाएंगे. बट फॉर कैट जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे वेल डिस्टिंक्ट है. इट इज डिप्लॉयड, इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. इट इज नॉट फ्री लिविंग, बट इट इज पार्शियली डिपेंडेंट. गैमेटोफाइट कैसा है इनका? गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग. गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग. जबकि स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, एंड इट इज नॉट फ्री लिविंग. Then gametophyte will produce gametes,
it will have two distinct phases, protonema stage and leafy stage. But sporophyte is having only three structures, foot seta, capsule, and capsule will produce spores. Spores कैसे बनेंगे? Spores are produced by meiosis. Spores are produced by meiosis, and then spores will germinate to form again protonema stage. Protonema will form secondary protonema, that will form leafy stage. Leafy stage will produce then your archegonia and antheridia, and the life cycle will continue so for thin man. Okay, this is what about your life cycle of mosses. फिर से रिवाइज करो क्या है एनसीईआरटी में मस्त पैसेज में दिया है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ दिस. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उनका. फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा? अगर प्रोटोनिमा के टुकड़े कहीं गिर गए तो प्रोटोनिमा से और नए बर्ड्स आ जाएंगे और बर्ड्स में से फिर पूरा सेकेंडरी लीव्स आ जाएंगे. इनफैक्ट सेकेंडरी प्रोटोनिमा मतलब लैटरल बर्ड्स कहीं गिर गए तो लैटरल बर्ड से जल्दी जल्दी ग्रो होगा वो मॉस जो रहेगा. दैट मॉस कैन वेल ग्रो व्हेन सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज देयर, and that growth is very fast growth. It can be easily seen in a short period of time. They will soon cover the area with the moss leafy bodies. Okay, तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है यहाँ पे आपके सेकेंडरी बर्ड्स के थ्रू वगैरह होगा, लैटरल बर्ड्स के थ्रू, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस लाइक दिस. एग्जांपल्स आर ऑफ योर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगुलम. ओके, नाउ अगर इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें, लाइफ साइकिल एक बार देख लो, एनसीईआरटी से रीड कर लो, स्टेट बोर्ड में भी ये सेम लाइफ साइकिल दी हुई है. अगर बात करें इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. अगर आपने देखे सो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में नंबर 1 पे है दे स्टार्ट वेजिटेशन. वेजिटेशन, दे आर द पायोनियर्स ऑफ वेजिटेशन अलोंग विद लाइकेंस. अगर कोई जमीन है फॉर एग्जांपल जहां पे कोई वेजिटेशन नहीं, लाइफ नहीं है, ओके, लेकिन वहां पे बारिश हो रही है हल्की हल्की और वहां पे पानी आने लगा तो तुरंत वहां पे कोई प्लांट झाड़ वगैरह जमा नहीं होते. जैसे किसी रेगिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर वहां पे वेजिटेशन शुरू करना है आपको तो रेगिस्तान की रेत में पहले तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम रहता, तो उतने चीजों में भी अगर वहां पे अगर टेम्परेचर कम हो गया, नॉर्मल हो गया, पानी वगैरह आ गया, सो ऐसे टाइम पे वहां पे लाइकेंस सबसे पहले एस्टेब्लिश होते. लाइकेंस दे आर द एसोसिएशन ऑफ अल्गी विद फंगस and they grow on the rocks, shady places, again moist places. Along with that lichens, your bryophytes are also the pioneers of vegetation. They also start vegetation on barren rocks, barren land, barren rocks, new areas, कोई नए एरिया जहाँ पे लावा चट्टाने वगैरह रहती, लावा रॉक्स वगैरह रहती, वहां पे वेजिटेशन नहीं होता जल्दी, तो उनको डिग्रेड करेंगे और वहां पे नए जीवन की शुरुआत, लाइफ की शुरुआत करने का काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके ब्रायोफाइट्स करते हैं. बाय दे आल्सो ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग पता है आपको, पत्थरों का चूरा हो जाना, आपका अक्षय वगैरह होना, उनका चूरा हो जाता, और पत्थरों के ऊपर ये जब एस्टेब्लिश होते तो पत्थरों के टुकड़े टुकड़े एकदम बारीक बारीक गिरते, एंड दैट लीड टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पेबल्स, एंड दे विल अगेन ब्रेक देम इनटू स्मॉल पेबल्स, डस्ट जैसे हो जाएंगे. दैट विल लीड टू सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन, इट इज नोन एज पेडोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस. वो पत्थर का चूरा करते जाएंगे और सॉइल की लेयर तैयार होते जाएंगी, एंड ऑन दैट लेयर ऑफ सॉइल नाउ ग्रासेस कैन ग्रो, shrubs can grow, small bushes, trees can grow, and then the jungle will be produced, a forest will be produced. तो जिंदगी की शुरुआत अगर आपको करनी है, लाइफ की शुरुआत किसी जमीन पे, तो आपको वहां पे लाइकेंस को पहले लाना पड़ेगा, एंड ब्रायोफाइट्स विल एस्टेब्लिश फर्स्ट देयर. दे विल ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ड्यू टू वेदरिंग सॉइल इज फॉर्म्ड and their death will occur. Bryophytes will die, lichens will die, and their organic content is mixed up in that rocky particles, soily particles, and therefore it will become humus, organic rich soil. In that soil now more complex plants such as your grasses, monocots, dicots, bushes, trees can grow, and the life can start there. ओके, ये इंपॉर्टेंस समझ में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको एनसीईआरटी में तो एक ही इंपॉर्टेंस दिया रहा है, आपको दो होमवर्क देने आ रहा हूं मैं. एक इंपॉर्टेंस है स्पैग्नम मॉस का. स्पैग्नम मॉस. सो व्हाट इज स्पैग्नम मॉस?
So this sphagnum moss is used as a packaging moss or water holding moss. Packaging moss or water holding moss because it has a huge capacity of water holding. बहुत ज्यादा पानी उसमें भर के रह सकता है, स्पंज के जैसा. लिटरली स्पंज को पानी में डुबा के निकालते कैसा हेवी हो जाता, पानी रुक जाता उसके अंदर. अगर ये स्पंज, अगर आप इसकी फोटो देख रहे हैं, आप आपके सामने आ रहे हैं, तो इसको पानी में से निकाले तो उसके अंदर इतना पानी रहता, उसको निचोड़ने के बाद पूरा पानी निकल सकता, बिकॉज इट हैज अ हाई कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड. Therefore you can use it for packaging of certain materials such as fish. मछलियां वगैरह जिनको अपन ट्रांसपोर्ट करना है दूर तक, तो उसको पानी में रख सकते हैं, या फिर पानी अगर आपको ज्यादा नहीं ले जा सकते तो आप उनको क्या करें, मॉस में पानी रहता, उसके बीच में मछलियां भर दो और फिर मॉस, फिर मछलियां, फिर मॉस, ऐसा रख के आप उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सो पैकेजिंग मटेरियल बोल के यू कैन यूज दिस मॉस, स्पैग्नम. सेकेंड यूज है, अगर इसका ही देखे आपने स्पैग्नम का, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पीट मॉस. पीट इज अ काइंड ऑफ कोल, कोयला. क्या होता, जो पूरे मार्शेस रहेंगे, दलदल वगैरह रहेंगी जहाँ पे, तो दलदली एरिया जो रहेंगे, आपको फोटो आ रहे देखते चलो, तो वहां पे दलदल में पानी वगैरह, कीचड़ वगैरह रहती, तो उस कीचड़ में ये स्पैग्नम ग्रो होता है और वहां पे मरते जाते, तो स्पैग्नम की लेयर दर लेयर, लेयर पे लेयर ऐसे तैयार होते जाते, और फिर लेयर दब के हजारों सालों के बाद उनका ऐसा कच्चा कोयला तैयार हो जाता. कच्चा कोयला मतलब क्या, उनके अंदर जो कार्बन का कंटेंट है, दैट कार्बन फॉर्म्स कोल, बट सिंस इट इज इन वाटर, सो इट इज very fragile, it will be very weak coal, but on drying you can use it as a fuel. So वो जो पीट मॉस रहेंगे इंडोनेशिया वगैरह के साइड में, जहाँ पे दलदल ज्यादा है, ऐसी जगह पे पीट मॉस बोल के यूज होता. सो दलदल एरियाज में, मार्शेस में ये बहुत ज्यादा दलदल में सड़ के इनके पीट तैयार हो जाता, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. ओके, इसी के साथ एक और यूज है स्पैग्नम का. स्पैग्नम इज द सोर्स ऑफ स्पैग्नॉल, एक केमिकल है स्पैग्नॉल, विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स. के यूज ट्रीटमेंट के लिए स्पैग्नॉल बोल के एक मटेरियल रहेगा, उसका केमिकल, कैन यूज इट एज ऑइंटमेंट, उसका एक सोल्यूशन आता. सो दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पैग्नम. ओके, तो स्पैग्नम आपका एक पैकेजिंग मटेरियल है फॉर शिपमेंट ऑफ सम सब्सटेंसेस because of its high water containing holding capacity. It has been also used as fuel because it is a peat moss, it forms peat, a kind of coal. It has medicinal use because it produces sphagnol, which is used in skin disorders. तो S याद रखने को भी easy. Okay, lastly अगर एक बात करूँ पॉलीट्रिकम की, तो अभी जो पॉलीट्रिकम नाम बताया था आपको, पॉलीट्रिकम. सो पॉलीट्रिकम का जो डिकॉक्शन रहेगा, डिकॉक्शन मतलब आपको पता है चाय वगैरह कैसे उबालते हैं वैसे, और उसको सिर्फ उसका काढ़ा बनाते जूस, तो वैसे डिकॉक्शन रहेगा. सो इसका डिकॉक्शन ऑफ योर पॉलीट्रिकम, इट इज यूज्ड इन किडनी डिसऑर्डर्स में बहुत काम में आता. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेडिसिनल यूज ऑफ योर दिस. Besides these uses, many mosses have food. They can be also used as food, fodder for animals, and food material by humans. So these are the examples of your mosses here. They are ecological and economic importances. इसके अलावा आपको और कुछ एडिशनल मिलता है तो वो करो, बट दिस मच इज सफिशिएंट. आपने इतना भी कर लिया तो बहुत हो जाएगा. एनसीईआरटी से करो, स्टेट बोर्ड से कर लो. एंड आई थिंक आपको लाइफ साइकिल लर्न हो गई होगी. लाइक गैमेटोफाइट के बस 2 फेजेस डाल दो और बाकी का स्पोरोफाइट सेम. स्पोरोफाइट इज हैविंग डिस्टिंक्ट फेज, पार्शियली डिपेंडेंट रहेगा, टोटली डिपेंडेंट नहीं रहेगा. टोटली डिपेंडेंट सिर्फ लीवरवर्ड्स. ओके, मैं एट द एंड आपको पूछता रहूंगा, जब चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तब अपन एक समराइज करेंगे अलगी का गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट्स का गैमेटोफाइट, और सबके फिर स्पोरोफाइट भी अपन कंपेयर करेंगे. तब आपको फिर ये याद आना चाहिए. तो अभी से लिखते चलो गैमेटोफाइट कैसा है इसका, और स्पोरोफाइट टेबल के जैसा बना लो. ऊपर मॉस लिखो, उसके फिर गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, लीवरवर्ड्स, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड, डिपेंडेंट क्या है, नॉन इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा लाइफ साइकिल में. डिपेंडेंट मतलब वो खुद ग्रो होता है, इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद ग्रो होता, सॉरी डिपेंडेंट मतलब वो दूसरे के भरोसे पे ग्रो होता, और इंडिपेंडेंट मतलब खुद ग्रो हो जाए. Okay, so here it's done bryophytes and their economic importance, their division is done. We'll start with the division pteridophytes in our next lecture.